Hello, good morning, everyone. Welcome back in the last day of trigonometry. Of course, we are left with a complementary angle formulae, but that we'll be discussing. Of course, it is not there in the syllabus right now, but we'll be discussing all that in after revision, maybe after your PT1. Okay, so this is the last day of trigonometry. From tomorrow, quickly we begin with the revision. Fine. So let's continue. Let's understand. Maybe few difficult and few easy question we'll be discussing in this session. Let's understand. सबसे पहले जो 20th क्वेश्चन है 21st ऑलरेडी यू ऑल हैव डन मेनी ऑफ यू हैव डन इट सो आई बी जस्ट सॉल्विंग इट एंड गिविंग यू हिंट 20th वन बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा हम इसको इंपॉर्टेंट बोल देते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है चलो देखते हैं क्या करना है अपना एल एच एस आर एच एस वाला ही कॉन्सेप्ट है तो एल एच एस लेते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर द होल स्क्वायर ठीक है एम स्क्वायर इन सेंस द स्क्वायर ऑफ दिस तो स्क्वायर ऑफ दिस इज टैन स्क्वायर थीटा minus okay plus 2 tan theta sin theta plus sin square theta minus of the square of this तो tan square theta minus 2 tan theta sin theta plus sin square theta and of course the whole square. So if you open the bracket, see signs will change. This is going to become plus. ये बाकी सब माइनस हो जाएंगे तो आई कैन इजीली कैंसिल tan square sin square and I'm left with 4 times tan theta sin theta the whole square which can be directly equal to 16 tan square theta into sin square theta. So very clearly you can see that 16 has come here. Only now these two I have to receive. So for that I can go for RHS. That would be better, isn't it? Taking RHS. RHS is 16 mn. So 16 into bracket m is tan theta plus sin theta and n is tan theta minus sin theta. Is that okay? Now 16 I need, so I'll not use that 16 or I'll not multiply with that. Only either this bracket I'll open. It is a plus b into a minus b. It will be tan square theta minus sin square theta. Will that be okay? So I think almost we have received this, but the problem here is here there is a into sign and here there is a subtraction sign. Now here you might consider this question is difficult or maybe the wrong or maybe not possible. But here the trigonometry, ditch you. The trigonometry always does this, that at a particular place you feel like, no, it is done now, after this I cannot do it. And then we have just 1 or 2 steps and the answer is done. So always remember, never quit. Just what you can do is try, go on trying and don't make errors. तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग. इसमें साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं. Sin square theta upon cos square theta minus sin square theta. I may take sin square common from this. I get sin square theta common. I am left with 1 upon cos square theta minus 1. ठीक है. तो 16 into sin square theta into 1 upon cos square theta is x square theta minus 1 for sure. So what is x square theta minus 1? Tan square theta. So it is 16 sin square theta into tan square theta. हो गया, done. LHS is equals to RHS. Finished. Right? Clear? I just hope you are clear with this. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. Let's not waste time. I know it's the last day of this particular trigonometry and you all have remembered the formulae. Again I repeat, if you haven't yet remembered, that is the basic thing for this particular topic. Make sure that you learn the formulae very properly, very nicely. Question number 21. In question number 21 you are given that x is equals to this. I think there was a change here, sin of a it was, and z is equals to this. ठीक है, तो ये रहा मेरे values. बस हमें यूज़ करना इन वैल्यूज़ को इन दैट. तो आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए. Many of you have solved this question.
It's easy, very very easy, and you find it funny, like interesting. Okay, आ रहा है आंसर आ रहा है, and ultimately you realize that yes, I got the answer. And that's the fun of the trigonometry. मज़ा आता है trigonometry करने में, and I hope many of you have enjoyed solving this sum. Maybe you're not getting the answer, but ठीक है, it's okay, but at least you enjoyed the sum, isn't it? I want you to do that. Anyway, let's understand this. देखो एक बात याद रखो कि यहाँ पे A है, यहाँ पे C है. You cannot use both angles together. That means sin square A cos square C or cos square A sin square C. You need angle to be same. So what I can do is, from first two terms I can take r square common and sin square A common, unless and until I have the formula or the expression in same angle. I cannot use any identity. That's the reason I'm just removing this sin square A from the first two, r square also, and I get cos square C plus sin square C. Of course, r square and cos square A will be left as it is. So of course, I hope you understand this is 1. So your r square sin square A into 1 plus r square cos square. So I hope you understand that r square can be taken common, and the sin square A plus cos square A is left inside the bracket, and the r square is the answer. And that was your RHS. Finished? That's it. आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. चलो, ये आपको खुद से करना है. 22nd क्वेश्चन, डू इट योर सेल्फ. थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, तो वो चेंज क्या है मैं दिखाता हूँ आपको. ये x को मैं y कर देता हूँ, और यहाँ पे y स्क्वायर. ठीक है, बस इतना याद रखो, एंड देन गेट द आंसर. इसका वैल्यू आंसर फाइंड करो. यू कैन यूज़ योर मेथड्स, बट फाइंड करो आंसर. देखो आता है क्या. ईजी है, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके, चलो करके देखो, इफ़ यू कैन डू इट. चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन इज़, हाँ, ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप ऑफ सम है, जिसको हम लोग इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर देते हैं. एंड ऑफकोर्स देखने के लिए भी ये सम कितना हॉरिबल लगता है. देखो, एक मॉन्स्टर डायनासोर कैटेगरी दिखता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट तो सम है नहीं. थोड़े से स्टेप्स हैं जो आपको पहले समझ में आने चाहिए, एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट. चलो देखते हैं. m इज इक्वल्स टू, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे LHS करना है विदाउट वरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. m स्क्वायर इंटू एन, मतलब m की जगह पे ये डाल दो, m स्क्वायर इंटू एन रेस टू 2/3. किसी भी टर्म का अगर ब्रैकेट स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, तो यू गेट अ वेरी, मतलब 3 टर्म्स आते हैं इंटू एन, मतलब ये 3 एंड ये 2 टर्म्स, मतलब 6 टर्म्स. थोड़ा सा एक्सप्रेशन ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं सोच रहा था कि वाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि एम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या. एम इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, विच इज़ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, विच कैन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. एंड m इज इक्वल्स टू, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये रहा मेरा m. सिमिलरली इफ आई फाइंड n इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, ये रहा मेरा n. नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि स्क्वायरिंग दिस m is far difficult than squaring this term. This is easy to square what we simplified it. So अभी हम लोग LHS ले सकते हैं. ठीक है ना. LHS is equals to m square n raised to 2/3 plus mn square raised to 2/3. मतलब थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रैकेट बढ़ा लेता हूँ. m स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, cos रेस टू 4 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू n डायरेक्टली, मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा रेस टू 2/3 ऑफकोर्स, प्लस m मतलब कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू स्क्वायर ऑफ n, दैट मीन्स साइन रेस टू 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू 2/3. लेट्स नॉट फॉरगेट. तो hope you understand, sin square cos square get cancel, and it is remaining cos cube theta raised to 2/3 प्लस ये रहेगा sin cube theta raised to 2/3. देखा कितना ईजी हो गया.
अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है. यू रिमेंबर पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लिकेशन इन द इंडाइसिस. ए रेस टू एम रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन. याद है? यू रिमेंबर दिस. तो वही करना है. So when you multiply 3 and 2 by 3, 3 into 2 by 3, it is 3 get cancelled is 2. So it is remaining cos square theta plus here sin square theta. And the answer is 1. And that's your RHS. Done. Finished. Okay? Clear? Easy था ना? आगे बढ़ते हैं. 25th I had asked you to solve, but again I will solve it here. थोड़ा सा अलग है. 15 25 I am talking about 15 tan square theta plus 4 sec square theta is equals to 23. और आपको ये ऐसा कुछ फाइंड करना है. ठीक है. तो यहाँ पे करना कैसे होता है? ऑलवेज रिमेंबर, अगर कुछ ऐसे वैल्यूज दिए एंड tan एंड sec रिलेटेड है तो एक किसी भी फॉर्मूला में अगर आप ला सकते हो उस एक्सप्रेशन को तो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है. आई मीन टू से 15 tan square theta है. If I consider this as 4 into bracket 1 plus tan square theta is of course equals to 23, then don't you think I'll get everything in tan and I can find the value of tan? और एक रेशियो मिल गया तो बाकी मिल सकते हैं. तो 15 tan square theta plus 4 tan square theta is equals to 23. ये इधर शिफ्ट हो सकता है. 15 plus 4 tan square theta is 19 tan square theta is equals to 19. तो क्या आएगा मेरा tan square theta is equals to 1. ये आ गया मेरा tan square theta is equals to 1. I can use my triangle concept of theta that opposite side ratio is 1/1, opposite side upon adjacent side तो 1k ये k and √2 k आ जाए by using Pythagoras theorem. Either that I can do, ठीक है ना, or else I can write this as tan 45 because I know the value of tan 45 is equals to 1. ठीक है. तो थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 45 डिग्री. तो व्हेन आई गेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, नाउ आई कैन पुट दैट वैल्यू इनटू sec 45 प्लस cosec 45 द होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 45. दैट्स इट. आई विल गेट द आंसर. है ना? आप लोग भी फाइंड कर सकते हो. ठीक है. 26 थोड़ा सा HOTS है, थोड़ा अलग है. बाद में इफ आई वांट आई विल एक्सप्लेन यू, तो फॉरगेट इट. ये लास्ट वाला क्वेश्चन. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल लास्ट क्वेश्चन राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग. ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा वियर्ड कैटेगरी है, इसलिए नॉर्मली आई टेक दिस क्वेश्चन एट द एंड. टेक्स्ट बुक का सबसे एंड लास्ट में ये क्वेश्चन है. देखो, ठीक है, अलग है. देखते क्या करना है. 3 है तो आपको पता है कि इसको इसके साथ इक्वल करना होता है और इसको मतलब 2 क्वेश्चन है ये बेसिकली. तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ये और ये प्रूव करो और फिर ये और ये प्रूव करो, ऐसे भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे कैसा है, बोथ कैन बी सिंप्लीफाइड टू दिस. ठीक है. तो 2 क्वेश्चन कैसे समझ में आ गए. तो पहला वाला देखते हैं, दिस टू दिस. तो LHS इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर इज 1 अपॉन cos स्क्वायर एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर. ये तो किसी को भी पता है. अभी उल्टा पुल्टा कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच कैन बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. दैट्स इट. ये बहुत सिंपल था. LHS इक्वल्स टू RHS आ गया. लेकिन अगर इन केस इफ आई टेक दिस एज LHS एज 1 माइनस tan थीटा बिकॉज आई एम सॉल्विंग दिस एंड दिस नाउ अपॉन 1 माइनस cot थीटा द होल स्क्वायर, नाउ द क्वेश्चन गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट. ठीक है. ये आप लोग खुद से ट्राई करके देखो, पॉज करके. यू विल अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू सॉल्व. ओके. एंड ये याद नहीं रहता तो आपको ये कंप्लीटली याद रखना पड़ेगा. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक के जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे. ओके. तो याद रखना है 100%. आपको इसको देखना पड़ेगा. मैं हमेशा रिमाइंड करता रहूँगा, डोंट वरी. इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ. एक ईजी है, वही दिखाता हूँ मैं आपको. 1 माइनस इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया. देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट यू विल एक्सपांड दिस ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा द होल स्क्वायर या 1 माइनस cot थीटा द होल स्क्वायर. आप लोग एक्सपांड करोगे, नहीं आएगा आंसर, याद रखो. चलो आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी cos थीटा माइनस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऑफ कोर्स द होल स्क्वायर मत भूलना, ऑलवेज यू विल, अदरवाइज यू विल नॉट गेट आंसर। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा minus cos theta, the whole square. You remember I had told you to, this particular bracket and this particular bracket might get cancelled if I take minus sign common from any one of it. You remember that it is just ulta, reverse of other, है ना? So I get that equals to minus of sin theta minus cos theta into sin theta upon cos theta into sin theta minus cos theta. The whole square, of course. So this and this get cancelled. I am left with minus sin theta upon cos theta, which is minus tan theta, the whole square, which can be equal to tan square theta, and that is your RHS. Okay, question done. ठीक है, थोड़ा सा weird type of. तो इसमें आपने कहाँ का गलती कर सकते थे? एक्सपांशन, इफ यूड हैव एक्सपांडेड इट, आंसर नहीं आता था। ठीक है, यहाँ पे आप नॉर्मली स्क्वायर भूल जाते हैं, इस स्टेप में आके समझ में आता है कि ये और ये अलग है एंड कैंसिल नहीं होता, ऐसा लगता है। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मिस्टेक्स होते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस सम प्रॉपरली। दोज हु वुड लाइक टू सॉल्व, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, आप सर्च करके देख लो, हो सके तो आपको समझ में आ भी जाएगा ये क्वेश्चन HOTS जो है। बट ठीक है, बाद में भी हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तकरीबन मे बी 15-16 मिनट्स लगते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। हमने बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए, सारे टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन लिए। मेक श्योर दैट टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ठीक से प्रिपेयर करो। आपको मैं दे देता हूँ हिंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो दिख रहा है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, ऑफकोर्स बाकी भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, बाकी और लास्ट वाला जो हमने अभी भी लिया टेक्स्ट बुक का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट वन एज वेल। सो सी दैट यू कवर एवरीथिंग, इवन आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अभी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं, यहाँ से अभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे जब तक हम लोग एग्जाम उसके लिए एग्जाम नहीं देते। ठीक है, थोड़ा रिविजन के बारे में सोचते हैं अभी, राइट नाउ फॉर द PT1। टिल देन, बाय बाय, सी यू टुमारो।